Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Hi Shadul, welcome to my podcast. Hi, hello, how are you, Rashmi? I'm good. Thanks for having me. Yeah, thanks for contacting कि आपको ये podcast करना है. It is a really pleasure for me. अच्छा Right. लगा. When you kind of put that in the this thing group, I was really excited with the prospect of doing this conversation. And thanks for that. Thanks for that. And I Yeah. still go, 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 go. अच्छा तो जब हमने बात की थी स्टार्टिंग में तो आपने बताया था कि आप फैशन डिजाइनर के सॉरी ब्रांड कंसल्टेंट है. मोस्टली यू वर्क इन दैट फैशन इंडस्ट्री उसी में ब्रांड कंसल्टेंट एंड उसी के आगे जो आसपास जो भी चीजें होती हैं यू काइंड ऑफ डील इनटू दैट पार्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yeah. So basically, I started. There's no मतलब ऐसा कुछ बहुत romantic story ऐसा नहीं है. What happened is मेरे पहले 2 clients clothing थे, तो clothing category में I kind of started building a niche and liking, and then shifted to fashion designing. After working with few clients, I developed थोड़ा in-depth knowledge. As I worked with them, I got to know about the category, and इसलिए fashion designing and clothing brands. Yeah. ओके ठीक है तो हम शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आप इसी पे ही डिटेल में चलते हैं. आपका एक्चुअल में अभी का जो काम है वो क्या है राइट नाउ, व्हाट यू डू? Basically we work with जो designer labels होते हैं या clothing brands होते हैं at a very nascent stage, launch stage पे है या rebrand है. A lot of clients come to go digital क्योंकि designer labels do better offline, तो उनको online जाके भी scale करना है. तो these are the typical stage at which they come to us, and we help them with go-to-market strategy, their online presence, and not just that, but getting them leads and customers through online channels, which is Instagram or ads or outreach. Yeah, that is in a nutshell what we do. तो आपने कहा कि आप ब्रांड्स को ऑनलाइन विजिबल होने में हेल्प करते हो. Right. सो इट्स मोस्टली यहाँ का इंडियन ब्रांड्स या फिर अभी आपने कोई बाहर के ब्रांड्स के साथ भी काम किया है? No, currently we have just worked with Indian brands. I have personally worked with other, international brands. But yeah, as an agency, we are currently operating in India with Indian brands. Bit more like homegrown brands. Right. ठीक है तो फिर हम इस पे शुरू करते हैं. उससे पहले लेट्स नो द बैकग्राउंड. आपका बैकग्राउंड तो आपका अगर मैं पूछूं तो आप शुरू से ही इस फील्ड में हैं या फिर बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू योर लिंक्डइन तो आप उसके पहले आपने टीसीएस में काम किया था. Right. Yeah, I mean, after graduation, my graduation was in computer science. तो उसके बाद TCS placement के लिए आया था college में. So like everyone in that phase, we kind of I gave the entrance test and everything, got through. तो वहाँ तब श्योर नहीं था, but I did that and I got in. 1-1.5 साल किया, लेकिन I got a feeling कि this is not for me. मुझे I wanted to be in the front facing of the business. ये टेस्टिंग का जो है ना वो बैक एंड में था, मतलब डेवलपर्स के साथ काम करो या टेस्ट करो, उसमें मजा नहीं आ रहा था मुझे. मैं आई बेसिकली कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, राइट? तो मार्केटिंग सेल्स इसमें ज्यादा मुझे इंटरेस्ट था. सो आई देन शिफ्टेड टू गिव माय GMAT and did my masters in marketing and digital media, specifically not an MBA. कॉन्सेंट्रेटेड स्पेशलाइज मास्टर्स जो होता है वो किया मैंने कॉन्शियसली, क्योंकि मुझे उसमें डेप्थ करना था, राइट, मार्केटिंग एंड डिजिटल में. तो EACP यूरोप, विच इज वन ऑफ द रेप्यूटेड बी स्कूल्स इन यूरोप, तो वहां पे मैंने किया. आई गॉट टू लर्न एट 2 campuses, which is one in Spain and one in London. तो yeah, we got exposure over there, worked with brands like L'Oreal Spain, फिर Chanel, Lee Tenor London में. तो या आफ्टर दैट मैं शॉर्ट स्टिंट सिंगापुर में भी था मेरा, जहाँ पे मैं नॉवेलशिप नाम का एक स्ट्रीट वेयर मार्केट प्लेस है, तो उनके साथ मैंने काम किया. एंड आफ्टर दैट आई हैव कम बैक टू इंडिया
wanting to start my own thing in terms of consulting, agency. And yeah, that's been my journey. So for the past 21, say I'm doing this, consulting and agency business. Yeah. वाओ यार ग्रेट। आई मीन बेस्ट एग्जांपल कि आपको अपनी कॉलिंग पे जाना चाहिए नॉट जस्ट Yeah, I mean, I definitely think I'm, lucky in that sense because सबको वो, because people have their restrictions in terms of getting a job and having that income चाहिए रहता है. But I had that, privilege of having a family business backup कि I got this opportunity कि थोड़ा मैं कर सकूँ, explore कर सकूँ खुद के लिए. Yeah. हाँ एक्चुअली इस चीज को समझ भी पाना कि यू हैव दैट व्हाट यू से यू हैव दैट बैक यू कैन टेक सम ब्रेक आप मतलब मॉनेटरी गेन अगर थोड़े दिन ना भी करो तो चलेगा बिकॉज यू हैव द फैमिली मतलब खाने पीने को तो मिल ही जाएगा ना Absolutely. उस पार्ट Yeah. पे वी कैन रन अवर बिजनेस कि हाँ थोड़ा क्रिएटिव हो सकते हैं उस साइड पे बिल्कुल बिल्कुल अपना जो काम है वो हम कर सकते हैं बिल्कुल मुझे वही लगता है क्योंकि अब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको वो रिस्ट्रिक्शन है एंड आई सी दैट सबका नहीं होता बट इस चीज को हाँ समझ भी पाना कि यू आर इन दैट प्लेस कि हाँ नहीं मतलब चल जाएगा कुछ दिन तो चल जाएगा ना आई नो आई कैन हाँ एटलीस्ट ट्राई करते हैं बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक वही एक जो अगर क्लैरिटी है आपके पास कि एक 2-3 साल या जो भी टाइम लगेगा you would be making a business a good business out of it then confidence you kind of go into it and start execute. यार ग्रेट आई होप आपका जो काम है वो आगे बढ़े सो इसमें से अगर मैं समझूं तो आपने एक्चुअली में रियल वर्क देखा है मतलब जो एस्टेब्लिश ब्रांड कह लो या फिर एक स्ट्रीट मार्केट वो कह लो बाहर मतलब बाहर के देशों में एंड आई एम श्योर आप इंडिया में भी थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा कि किस तरह से Right. काम करता है तो मैं सबसे Right. पहले इसी पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी बिकॉज ये मुझे थोड़ा वो लग रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता सो अगर मैं पूछूं तो दोनों मार्केट में डिफरेंस क्या है वहाँ की मार्केट स्ट्रीट मार्केट कह लेते हैं पहले तो स्ट्रीट मार्केट में वहाँ और यहाँ पे डिफरेंस अगर आपको So I think the difference is still huge, I would say, because मैंने जो मेरे को बहुत अच्छी तरीके से याद है I joined Novel Ship, which is a marketplace in streetwear marketplace in Singapore, based in Singapore, and operates all around Asia. तो मैंने वहाँ पे मेरा one of the first task था कि इंडिया का रिसर्च करना तो it was nowhere. This is 2018 and we are 6 years. There's that Vedant Lamba brand. What's its name? Main Street, yeah. तो वो ब्रांड बहुत अच्छा कर रहा है in terms of marketplace, right? And even there are brands that are doing well in India now. But at that point, it was nowhere because there was no awareness. ये जो sneakers और streetwear का reselling है वो बहुत ही छोटे लेवल पे था as compared to these western और southeast Asian nations, right? तो वहाँ पे वो कल्चर बहुत ज्यादा था इवन फाउंडर्स जो मैं जिनके साथ काम कर रहा था वो स्ट्रीट वेयर खुद दे लव स्ट्रीट वेयर देमसेल्व्स एंड उन्होंने आउट ऑफ दैट पैशन वो बिजनेस शुरू किया था तो मैं तो चौंक गया था क्योंकि दे गेव मी दैट असाइनमेंट कि आप इंडिया से हो तो इंडिया का रिसर्च करो हमें वहां पे भी शुरू करना है बट इट वाज नथिंग आई थिंक मेन स्ट्रीट तब थोड़ा यूट्यूब पे कंटेंट डालता था मैंने रिसर्च किया था they used to do like short videos on YouTube where they used to go to celebrities जिनके पास at the time बहुत पैसा रहता था and they kind of have Anurag Kashyap one of the videos that I saw with Main Street they went to his house and उन्होंने उनका sneaker collections वगैरह दिखाया so all of those things were there at a very small level today I think it's huge today I think it's somewhere there but yeah, still growing. I would say still growing in India. लाइफस्टाइल ब्रांड्स और होमग्रोन ब्रांड्स लाइफस्टाइल कैटेगरी में जो बढ़ना शुरू हुए थे वो 2021 के बाद आई गेस इसकी हुआ था Even COVID on break. Shark Tank, right? Even on Shark Tank, you see so many streetwear and lifestyle brands coming up now, right? The point is again selling that premium, right?
when you're selling 5K, 8K, 10K plus, right? 15K plus designer labels or streetwear, right? So that is something that is still very at the nascent stages, I would say, with my experience. And yeah, we have to go a long way in terms of even brands having that maturity in terms of marketing and the products, and even on the audience side where people are not having that um, willingness to spend rather than spending capacity. I feel spending capacity hai, it is moving, it is growing gradually, not there yet, but वो willingness to spend अभी तक I feel is not there. So Yeah. you said about the selling point, मतलब वो जो आप कह रहे हो कि जो प्राइस पॉइंट होता है हाँ. में थोड़ा इशू होता है, वो अगर आप फिर से एक्सप्लेन कर दो कि व्हाट यू वर सेइंग एंड एज अ ये मुझे भी जानना था कि एज अ बिगनर लेवल अगर मैं शुरू करती हूँ कोई ब्रांड और मैं उसकी प्राइस पॉइंट हाई रख देती हूँ, सो व्हाट इज द चांस ऑफ मी ऑफ विनिंग दैट थिंग, मतलब वो चल जाएगा मेरा प्रोडक्ट। तो अगर मैं अपना शुरू करती हूँ कोई ब्रांड और उसका मैं प्रीमियम प्राइस पॉइंट रखती हूँ, तो कितना चांस है कि वो चल जाएगा इन कंपैरिजन टू द कि अगर मैं एवरेज रखती हूँ लाइक 2000 के अराउंड एंड द प्रीमियम में जैसे आपने कहा 15,000, तो 15,000 तक रखती हूँ, तो उसका कितना चांसेस है स्टैटिस्टिकली कि वो मेरा प्रोडक्ट या मेरा ब्रांड चल जाएगा, और अगर नहीं चलेगा तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द इंडियन मार्केट? श्योर. सो पहले स्टार्ट करने की क्या अफोर्डेबल सेगमेंट है, क्या मिड मार्केट है, क्या प्रीमियम है. तो एनीथिंग दैट इज बिलो 1500 or 2000 is affordable segment in India. I think 2000 to 5000 is the mid market, right? And above 5 6,000 is the premium segment, right? And we specifically recommend brands who we work with are firstly, most of them are in the premium segment, but even if brands who are in the mid market, especially जो nascent stages में है, we recommend them to rebrand into premium segment. Because there's a when you sell, आप जब premium segment में sell करते हो, especially at the start of your brand, आपके margins अच्छे होने चाहिए. With every sale, you need to make money. आप अगर पैसा ही नहीं बनाओगे, तो at the product level, so it's the margins you make is the profits you make is the oxygen, right? The revenues and the profit are the oxygen, तो ही चलेगा. ना अभी क्या होता है, अगर आप 900 या 900 1000 एक 1500 2000 इस पे ना आप यू डोंट मेक मच मनी. आपके यूनिट इकोनॉमिक्स हैव टू बी सॉलिड एट द बैक ऑफ इट. आपका लॉजिस्टिक्स कितना जा रहा है, आपका हाउ मच आर यू मेकिंग द क्लोथिंग एट प्रोडक्ट लेवल पे, राइट? तो वो अगर सॉलिड है तो ही यू आर गोइंग टू बी एबल टू काइंड ऑफ मेक मनी एट द एंड ऑफ इट इन द अफोर्डेबल सेगमेंट. और उसके लिए ना at scale, when you think about when you want to sell like 1,000 units, आप जब एक go to market strategy करते हो 1,000 units का या 2,000 5,000 10,000 और रोड मैप ऑफ 6 months में भी, या आप 6 महीने में 5,000 या 10,000 इन्वेंट्री की यूनिट्स सेल करने वाले हो, दैट इज व्हेन अफोर्डेबल मेक्स सेंस. और उसके लिए यू नीड टू हैव अ वेरी साउंड फाइनेंशियल मॉडल बिहाइंड इट. उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है. Zudio, you see, affordable segment है, fast fashion है, right? But the financial model behind it is very strong, and for that you need to have funding. Abhi funding not is not available to everyone, right? If you are from IIM, ABC, Lucknow, Indore, you kind of have a chance, right? IIT, IIM से हो तो you get a funding, but not everyone is from there, and you don't get access to that kind of funds to be able to make that financial model work, right? And therefore, if you are into mid market, better sell in the premium market, right? And uska formula, we'll talk about that also, how to make premium market work. But this is absolutely to at the end of it, आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, absolutely premium market में ऑपरेट करना स्टार्टिंग से is very a good way to start, and it definitely can fly.
तो मैंने ना जैसे मैंने बोला कि वैसे मैंने बताया नहीं है, लेकिन 2021 में ही स्टार्टिंग में आई स्टार्टेड माय मैगजीन काइंड ऑफ, थोड़ा समझने के लिए भी इस मार्केट को। तो लाइफस्टाइल अपहेल एक मैगजीन मैंने स्टार्ट की थी, जिसमें आई वर्कड काइंड ऑफ टॉक्ड एंड मेट एंड सॉ मेनी होम ग्रोन ब्रांड्स। तो इसमें से कुछ का जो प्रोडक्ट था वो बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड या प्राइसिंग पॉइंट रहता है, जैसे आपने कहा, नॉट नॉट इन दैट 15,000 वाला रेंज, बट इट वाज मैक्सिमम में 10,000 बोल सकती हूँ, एंड मिनिमम में 1,000 में अगर क्लोथिंग ब्रांड की बात करूँ तो इट वाज इन 3,000 2,000 रेंज में, मान लीजिए आपके अच्छे प्रोडक्ट्स उनके जो थे वो थे। राइट। बट बहुत सारे जो थे ना वो ज्यादा वो नहीं हुए, मतलब चले नहीं। और कई सारे तो मैंने बाद में देखा उतने ज्यादा एक्टिव भी नहीं रहे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन वाला पार्ट मैं बाद में पूछूंगी। बट तो क्या अगर किसी भी ब्रांड का बंद होने का रीजन, जैसे आपने अभी कहा कि पैसे का प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। भी अच्छे भी अच्छे कंटेंट या कंटेंट इन द सेंस अच्छे प्रोडक्ट है उनका, उसका भी बंद होने का रीजन रीजन यही होता है कि उनकी जो प्राइस पॉइंट होती है वो अफोर्डेबल रेंज में या फिर एक मिनिमम सॉरी एवरेज रेंज में रखते हैं, एंड देन इट कुडंट मेक इट फार। Right. That's Right. the reason that you said. See, there are so many reasons a business can, shut up shop. There are so many reasons. But especially what I've seen in the category that we operate in is founders at the nascent stages don't look at scale. You cannot. I'm okay with the idea कि आप पहले PMF लो, प्रोडक्ट मार्केट फिट जो बोलते हैं, या DMF जो भी है वो आप करो, but you need to have a longer vision. Founders right now just look at 6 months or 3 months with no real roadmap in front of them कि इसको स्केल कैसे करना है, right? आप लॉन्च करते हो, यू लुक एट ब्रांड लोगो बनाना है या इन्वेंटरी करना है। उसके बाद आई थिंक द रियल शिट बिगिंस व्हेन यू काइंड ऑफ पुट दैट इन्वेंटरी ऑर्डर। सबसे मुश्किल चीज है बेचना आपके प्रोडक्ट्स, एंड वो जब होता नहीं है ना, तब पीपल लैक द मोटिवेशन, एंड दैट्स पर्पस नहीं होता है। A lot of my prospect, I ask them what is the purpose behind this in the call we do, strategy call. तो क्यों कर रहे हो, मतलब why are you starting, और why have you started? क्योंकि जब when you stop selling, आपका माल जो है वो बिक नहीं रहा है, तो what will drive you to sell it? That is one of the most important things, right? Basic है ये। बिजनेस भी छोड़ दो आप, पहले तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक ब्लॉकेज आ गया, 2 ब्लॉकेज आ गए, फिर आपको वो इफ यू हैव पीपल कम टू मी एंड दे से कि लाइक आई एम स्टार्टिंग दिस, आई एम डूइंग माय कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हूँ, और ये 6-8 महीने में जब फ्लाई व्हेन दिस विल फ्लाई, आई विल लीव माय कॉर्पोरेट जॉब। मैं बोलता हूँ ये साइड हसल नहीं है, ये डोंट डू इट। आप एक तो फुल्ली कमिट करो आपके फॉर दिस बिजनेस, और यू डू योर जॉब। एंड मोस्ट ऑफ द नेशन सीरीज में यही रीजन होता है कि देयर इज नो प्रॉपर पर्पस बिहाइंड स्टार्टिंग दैट द बिजनेस, और नॉट देयर इज नो विजन टू काइंड ऑफ मेक इट वर्क आउट टू स्केल इट। या ओके, सो अच्छा, मुझे एज अ कस्टमर अगर मैं देखूं तो आपने जो प्राइस पॉइंट बोला, हाई प्राइस पॉइंट रख सकते हैं टू फॉर द मार्जिन, कि आपके पास भी पैसे आए आपके काम करने के लिए, क्योंकि आपके पास ही पैसे नहीं आएंगे, वो मोटिवेशन ही नहीं आएगा, तो फिर मतलब क्या है। बट एज अ कस्टमर मैं बोलूँ तो फिर मुझे वो प्रोडक्ट दिखना चाहिए ना 10,000 का। और दूसरी बात ये है कि 10,000 इज समथिंग, जैसे सूट की बात हुई, 3-4,000 यू कैन गेट इन अ गुड ब्रांड, जाके आप एक अच्छा सूट जाके ले सकते हो। लेकिन ये वो ब्रांड है, एंड अगर मैं फैशन डिजाइनर की जरूरत करती हूँ तो मुझे उसी लेवल के जाने के लिए उसे 7-8,000 का करना पड़ेगा। बट द थिंग इज कि मैं अपनी बात नहीं करी, लेकिन जनरली जो कस्टमर में चलता है, विद दैट ब्रांड कम्स दिस कि अच्छा मैंने उस ब्रांड से कपड़ा खरीदा है, एंड डिजाइनर देन या तो वो डिजाइनर बहुत अच्छा हो या उसने कुछ तो कमाल का ही बना दिया हो कि वो फेमस हो जाए, कि यार मतलब लग रहा है कि हाँ ये है 10,000 का। तो या तो ये चीज हो, नहीं तो फिर अगर आप उस इल्यूजन में हो कि आई हैव मेड अ गुड प्रोडक्ट और ये हो जाएगा,
तभी तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना, मतलब एज अ कस्टमर व्हाई आई वुड बाय दैट 10,000 का कपड़ा जब मैं उससे Yeah. अच्छा कपड़ा सस्ते में खरीद सकती हूँ। तो Right. ये वाला इशू आई गेस, So, ये तो मैंने देखा है। हाँ, ये तो मैंने पूरा देखा कि द प्राइस पॉइंट एंड so, द yeah, वो कुछ नहीं करना है बिल्कुल बिल्कुल. So क्या होता है ना इसमें, we talked about two things here. We talked about the brand and we talked about the personal brand. अभी जैसे मैं कंसल्टेंट हूँ, राइट, मैं कंसल्टेंट हूँ फॉर स्केलिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग और आप कुछ भी कह लो, राइट, ब्रांड कंसल्टेंट, आई एम अ ब्रांड कंसल्टेंट. वैसे ही अ डिजाइनर इज ऑल्सो अ कंसल्टेंट, अ फैशन डिजाइनर इज कंसल्टेंट, ही इज जस्ट डिजाइनिंग क्लोथ्स, राइट, अकॉर्डिंग टू द हिज और हर टारगेट ऑडियंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डिजाइन कर रहा है. तो यू हैव टू position yourself as a consultant, right? तो बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स आर गुड डिजाइनर्स बट उनका ब्रांड नहीं है. दे नीड टू वर्क ऑन देयर पर्सनल ब्रांड्स आल्सो, राइट. अगर आर्टिस्ट अच्छा है तो आर्ट का नाम होगा और आर्ट बिकेगा, राइट. आर्ट कितना भी अच्छा होने दो, अगर आर्टिस्ट का नाम होगा तो आर्ट ज्यादा बिकेगा, राइट. It is vice versa. I mean, even if you can build your personal brand with your good products also, but आज की डेट में जब सोशल मीडिया इतना, you see so many brands, founders doing social media, it's very accessible, very possible to build your personal brand on social media and leverage that to sell your products. अरे यार, एफएमसीजी के फाउंडर्स आजकल पर्सनल ब्रांड से बेच रहे हैं. एफएमसीजी सोचो, मतलब एक जमाने में 1980s 90s में जब पार्ले जी एंड आईटीसी के जब प्रोडक्ट्स रहते थे वो सिर्फ रिटेल में बिकते थे. आज लोग इंस्टाग्राम पे ये चीजें बेच रहे हैं, राइट. ट्रू पर्सनल ब्रांड, ऐसा नहीं कि ब्रांड का नाम है, ब्रांड का पेज है. जो वो टू फार्मिंग ब्रदर्स या कुछ है, हाँ, वो इंस्टाग्राम पेज का नाम True Brothers Farming ऐसा कुछ है. तो वो लोग आउटस्टैंडिंग दे हैव डन, राइट. सो या पर्सनल ब्रांड, द पॉइंट इज कि पर्सनल ब्रांड बनाना इज इम्पोर्टेंट, एंड ऑन वन साइड इज योर एक्चुअल ब्रांड ऑफ द एंड द एक्चुअल प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट पे भी काम करना है। क्लोथिंग ब्रांड या प्रोडक्ट ब्रांड, तो वो भी आपको साइड बाय साइड बनाना है एंड पर्सनल ब्रांडिंग पे भी काम करना है, राइट. तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है डिजाइनर ब्रांड्स को या डिजाइनर्स को ऑनलाइन स्केल करने में? क्या प्रॉब्लम आती है? एज यू सेड कि ऑनलाइन हो सकता है। सो क्या होता है ना कि ट्रेडिशनली before the advent of social media, that the traditionally the category of designer clothing is been sold offline, जो exhibitions होते हैं, right, जो लोग पहले boutiques में जाके बात करके, right, to the designer, then getting customizations made. So that was the trend, right, that was the traditionally how they operated. अभी क्या हो गया है कि there is access to social media, but there is no structured approach. जो भी मतलब फैशन डिजाइनिंग कोर्सेस है या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, they don't have the expertise to teach fashion designers how to sell online for, and that's what there are agencies and consultants like us to help them kind of do that, right. तो ऑनलाइन में और एक प्रॉब्लम क्या होता है कि एज यू सेड 10-15,000 प्राइस पॉइंट पे यू डोंट हैव ब्रांड इक्विटी. जब स्टार्ट करते हो तो ब्रांड नहीं है, कुछ भी ब्रांड इक्विटी नहीं है, राइट. तो in this scenario there is a way to sell also when you don't have brand equity. You need to carve an experience around your product. When you're selling 15,000, आपका कभी भी कस्टमर जो है वेबसाइट पे आके कार्ट में जाके 15,000 नहीं करने वाला इंडिया में, एंड ऑन स्केल नो, because there's no brand. We as Indians, we think about buying 3-4,000 ka product so much online, right. We think about it so much as clothing products, and clothing ऐसे कैटेगरी कि हमको पहन के देखना अच्छा लगता है, हमको फील लेना अच्छा लगता है. तो इमेजिन करो आप हो, you have money, that is not a problem. आप you have a good background, but that willingness to spend वो नहीं होगा. उसके लिए there has to be different approach in terms of custom funnels, right. ऑनलाइन मार्केटिंग में भी there are different funnels कि आप पहले क्या दिखाओगे, then how will you drive the customer from your
Instagram or your ad to your website, will the first touch point एक तो website पे directly sell करना work चलेगा ही नहीं, right? It has to be a one-to-one selling, जो तो exhibitions में होता है. हाँ Exhibitions में क्यों sell होता है? क्योंकि you speak, आपको बात करने को मिलता है, right? हाँ Designer से. You develop a relationship. या ट्रू वो online नहीं होता है. सो या So that is the problem. Those are the problems. सो मैं बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस मैंने हाँ. लिया तो नहीं था बट देयर वाज अ टाइम जब मैं चिकनकारी मैं बहुत रिसर्च कर रही थी कि मुझे चिकनकारी का एक अच्छा सूट मिल जाए वेडिंग हाँ. फॉर अ वेडिंग फंक्शन Yeah. अल्टीमेटली मैंने लिया एक ब्रांड से बट आई Hmm. वाज बिकॉज सो मच इनटू ए होम ग्रोन ब्रांड खैर वो Hmm. भी इंडिया का ही है जहाँ से लिया Hmm. इंडियन प्रोडक्ट बट Hmm. कि मैं होम ग्रोन ब्रांड खुद ही क्योंकि इतना मैंने काम किया तो मैं ढूंढ रही थी एंड जब मैं ढूंढ रही थी तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी दैट इट आल्सो कम क्योंकि चिकनकारी थोड़ा महंगा होता है Right. 5000 के आगे ही बहुत अच्छा मिलता है तो जब मैं Right. ढूंढ रही थी तो मुझे मिले ऐसा नहीं कि मुझे मिले नहीं पिक्चर्स में और मैंने 2-3 ब्रांड से बात भी की अल्टीमेटली क्योंकि मुझे समझ नहीं आया तो मैंने अपने क्योंकि मैं यही रहती हूँ तो मैंने शॉप से जाके ले लिया बट एंड एक ब्रांड से मैंने बात की थी उनका प्राइस पॉइंट भी अच्छा खासा था आई थिंक 7000 के आसपास या उससे ज्यादा होगा मुझे याद नहीं और फिर मैंने कुछ टाइम बाद जाके जब वो पेज देखा ना नॉट बहुत ज्यादा टाइम बाद नहीं कुछ टाइम बाद ही कुछ महीने बाद वो पेज पूरा गायब हो गया नाउ देयर कम द पॉइंट मतलब वो ब्लॉग था वो था ही नहीं पेज अब यहाँ पे वो बात आ जाती है कि हम कि लोग क्यों नहीं लेते हैं एंड कि आपको वही नहीं होता ना आपको विश्वास कैसे होगा कि ये सही है या गलत है बिल्कुल, बिल्कुल. So, again, when you are selling in the premium segment, वो trust होना चाहिए between the brand and the customer. And again, all the more reason to do like, one-to-one selling where you're getting people on consultation calls, understanding the requirement, understanding their vision, what, people want to talk about. अगर आप किसी शादी के लिए आपको करना लेना है, तो you would like to talk about it, right? To the person you're getting it from. So ये सब advantages है and also you don't need an inventory also, right? When you are doing like order basis or custom basis, when you can sell a 15-20,000 on order basis, you can have that timeline of producing that clothing. So inventory आपका inventory cost भी cut हो रहा है. So many advantages to this. But yeah, at the आपने जैसे बोला that the trust factor is always has to be there. That is the reason don't we recommend don't sell online. It won't, first of all, because people won't trust you, and even willingness to spend नहीं होता है at that price point. या प्राइस पॉइंट पे थोड़ा ये इशू आ जाता है Hmm. ठीक है तो फिर इसी पे से आगे बात करते हैं बिकॉज दिस इज ऑल ब्रांड फैशन डिजाइनिंग के बाद की बात है बट जब वो सारी चीजें तो एक इंसान ही चला रहा है व्हाट इज Right. माइंडसेट जो ये जो फाउंडर्स हैं ये लैक कर रहे हैं जिसकी वजह से ये इश्यूज आते हैं या फिर वो ही खुद इशू अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं हाँ, तो जैसे कि ना मैंने पहले भी बोला कि फैशन डिजाइनिंग व्हेन दे आर आउटस्टैंडिंग फैशन डिजाइनर्स, राइट? वो प्रोडक्ट बना सकते हैं. अभी डिजाइनर लेबल में दस प्रोडक्ट, आप क्या प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, दूसरा आपका ब्रांड है और तीसरा आपका बिजनेस है. फैशन डिजाइनर्स के पास अभी सिर्फ माइंडसेट में सिर्फ प्रोडक्ट है. हाँ They lack business IQ and brand IQ, which is not, I'm not kind of disrespecting them, लेकिन they don't have that background, right? तो ये दो चीजें आप कैसे करोगे? And also in terms of working with agencies or consultants, uh, if you are, मैं आपको एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ. आप अगर 15,000 या 10,000 के प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, ठीक है, 10,000 का प्रोडक्ट आपने 10 बेचा तो 1 लाख का आपका रेवेन्यू होगा. आपने अगर 100 बेचा तो 10 लाख का होगा. इवन इफ यू आर टारगेटिंग 100 बेचना रहेगा, आपको आपको अच्छा लगेगा अगर आप बेचोगे 100 यूनिट्स पर मंथ, राइट? तो look at this mindset. If you want people to buy 10 lakhs worth of your products, right? But you yourself are closed
to the idea of working with agencies or consultants who are going to help you get that revenue, right? There is hesitancy. I as a consultant, right, I invest on a yearly basis 2 to 3 lakhs of rupees or even more in my own training, because there's so आज की डेट में you need to kind of keep updating with new skills, new platforms, right? तो अगर आप बिजनेस और अपने में इन्वेस्ट ही नहीं करोगे, तो हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग समवन एल्स टू बाय दैट 15,000 20,000 का दिस थिंग फॉर एंड फॉर यू नो मैं फैशन डिजाइनिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, दैट यू ऑलरेडी नो, बट द अदर थिंग्स दैट वी स्पोक अबाउट विच इज ब्रांड एंड बिजनेस कैसे करना है, ये आप अगर लोगों के साथ काम करने के लिए ओपन नहीं हो, मैं ही मैं ही बनाऊंगा या मैं ही बनाऊंगी, मुझे सब आता है, इफ that ego and arrogance is there right from day one, then how are you going to build a business? Yeah. So that mindset also has to be there, of looking at long term. ओके, सो यू आर सेइंग कि जो पहले तो उस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा कि वी कैन मैनेज ऑल द थिंग्स ऑन आवर ओन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, बट यार स्टार्टिंग में ना थोड़ा अगर तुरंत तुरंत आप स्टार्ट कर रहे हो, यू आर अ ग्रेट फैशन डिजाइनर, देन आई थिंक अगर आपको अपने स्किल्स पे थोड़ा भी वो होगा, भरोसा होगा, तो आई थिंक और ये चीज आपने कहा कि यू हैव द मनी, यू हैव द विजन कि आपको इस तक लेके जाना है, you can hire business consultant or a brand consultant to help you. Else, Absolutely. study the market, study your people. थोड़ा बहुत जो आपको जो भी ब्लॉकेज मिलेंगे, तो आई थिंक अगर आप वो भी करते हो, तो उसके बाद भी जो भी आपको एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद भी अगर आप बिजनेस कंसल्टेंट को हायर करते हो या ब्रांड कंसल्टेंट को, तो वो आपको और ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि फिर आपने खुद ही वो रोड ब्लॉकेज देखे हुए हैं. देन आई थिंक के बाद आप किसी अच्छे ब्रांड कंसल्टेंट को हायर करते हो, देन इट विल हेल्प यू मोर to understand how you will go further. Right. And the selling के बाद में बात करें तो ऑनलाइन सेलिंग से ज्यादा you have to make the relation with your customer if you are selling a premium product. that हमारा, मैं पुराने कन्वर्सेशन का अगर मैं समरी निकालूं तो यही निकल के आया कि ऑनलाइन हमें करना है, बट ऑनलाइन से पहले जस्ट ये नहीं सोच लेना है कि ऑनलाइन में आपका एकदम बूम हो जाएगा एंड यू पीपल विल स्टार्ट पिकिंग योर प्रोडक्ट्स if you are selling on the premium prices. तो सबसे पहले आपको 1-to-1 बनाना पड़ेगा. नहीं, so yeah, I'll talk about that. अभी even in online marketing, when I say, founders को लगता है या designers को लगता है कि ads है, तो ads जब जैसे करेंगे वैसे customers आना चाहिए. I will tell you कि what is behind the ads. Ads, digital ads जो करते हैं Instagram पे आप देखते हो या कहीं पे भी देखते हो, Facebook पे, it's a derivative of ad creative, landing page और आपका बिजनेस के जो इकोनॉमिक्स है, राइट, ये 3 चीजों पे आपका है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब अगर आप क्रिसमस में दिवाली का कोई मतलब ये चला रहे हो, मतलब दिवाली से रिलेटेड कोई सेल है, वो आप किसी टाइमिंग इज नॉट मैचिंग, तो वो नहीं चलेगा, राइट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और या कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ गया बीच में, राइट, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स का फैक्टर, अगर वो बीच में आएगा तो आपको आपके एड्स रिजल्ट्स नहीं देंगे. तो एड्स, एड क्रिएटिव जो वीडियो आप देखते हो या जो भी आप क्रिएटिव देखते हो, दैट हैज टू बी गुड. योर लैंडिंग पेज has to have a structure, has to have a structure, right? In terms of credibility, in terms of the top of the funnel जो attractive testimonials हैं वो चाहिए. So ये सब all has to be in congruence, तभी आपके ads चलेंगे. आप ऐसा नहीं expect कर सकते हो, and this takes time. आप अगर आज ads launch करते हो तो expecting returns in 15 days or 20 days or a month is not क्या बोलते हैं, it is not realistic. It takes about 2 to 3 months for ads to set in. It for Instagram algorithm to match your products with the right audience. So it takes time, right? And this is where founders need to be educated कि आप सिर्फ पैसे देके
सिर्फ आप एड बजट डाल के यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि एक दो महीने में आपको रिटर्न्स हायर रिटर्न्स आ जाएंगे. एनी परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी विल टेल यू दिस ओनली कि यू नीड टू वेट इट आउट 3-4 months. तीसरे चौथे मंथ में आपको रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, तब इट विल सेट. सो यू नीड टू हैव दैट पेशेंस, राइट? Great. आप just one point, I will make one last point. It's about the consumer getting to having third or fourth touch points. आप जब पहली बार कोई चीज देखते हो तब यू वोंट काइंड ऑफ बाय इट. जब आप रिपीटेडली वो चीज देखते हो, रीटारगेटिंग एड्स हो गया या सेकंड टच थर्ड टच पॉइंट हो गया, and that is going to come in 3-4 months, right? That is not going to happen like this, right? Once you see, you kind of okay, क्या है देख लेंगे. Second time you see, अरे what is this product? Third time you go on the page, अरे देखते हैं, अरे ये तीसरी बार आया, देखते हैं कौन सा ब्रांड है, क्या है. Then fourth time maybe you will consider, ठीक है चलो मुझे अभी लेना है, right? That brand will come at the top of your mind. So Yeah. this is the logic behind ads, right? हाँ वही एक्चुअली आई वाज जस्ट सेइंग थिंग, लेकिन आपने खुद ही बोल दिया कि जो ट्रस्ट इशू होता है वो बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा, स्पेशली अस जो मतलब इंडियंस या भारत के जो हम जैसे लोग हैं जो पैसा खर्च करने से पहले बहुत सोचते हैं. इवन वी हैव मनी, लेकिन हम तब भी सोचते हैं क्योंकि हमारी वैल्यूज वैसे हैं अभी हाँ. तक पुराने. वो बिल्कुल. आपके पास पैसे भी होंगे बट यू हैव दैट मिडिल क्लास वैल्यू ना कि यार ऐसे थोड़ी ना पैसे बर्बाद कर सकते. एंड Right. चीटिंग इज विजिबल. अगर आप एज अ ब्रांड आप गुस्सा हो सकते हो कि कस्टमर ऐसे करता है, बट कस्टमर के पास तो यार उतने ही पैसे हैं, अब वो कहाँ लगाएगा. तो वही बात हो जाती है. एंड दिस इज व्हाट यू वाज दिस इज फ्रॉम देयर इट कम्स कि कमिटमेंट होनी चाहिए अर्ली स्टेजेस पे. सो द ब्रांड हैज टू बी कमिटेड इन दैट प्रोसेस जहाँ पे अर्ली स्टेज. हाँ, तो मैं ये पूछ लेती हूँ कि वो अर्ली स्टेज कितनी लंबी होती है. पहले तो अर्ली स्टेज हम कितना मान लें, 1 साल 2 साल, पहले तो वो अर्ली स्टेज ही हम डिफाइन कर लेते हैं. जैसे आपने अभी बोला कि Yeah. हाँ. जैसे आपने बोला भी कमिटमेंट होना चाहिए, आपको थोड़ा 2-3 महीने देखना पड़ेगा. बट आई वॉन्ट से कि सिर्फ 2-3 महीने होगा. 2-3 महीने के अगर आप 2-3 महीने देख रहे हो, उसके पहले आपका भी प्रोडक्ट तैयार होना चाहिए जिसमें काफी टाइम लग जाता है. तो फिर 2-3 महीने वैसे आपने ऐड का बोला, तो ये हाँ. तो Exactly. अर्ली स्टेजेस अगर मैं पूछूं तो वो कितनी लंबी होगी किसी भी एक ब्रांड के लिए या फैशन डिजाइन? ब्रांड बनने के लिए नहीं हाँ, आपने अर्ली स्टेज बोला तो मैं अर्ली स्टेज है वो उससे हम आगे आ जाते हैं. मैं बस हाँ. ये पूछ रही थी कि अगर किसी ब्रांड को कमिटमेंट रखना है, नॉट जस्ट फॉर एड, एज ए पूरा कंपनी अपना जो भी ब्रांड बनने के लिए कितना कमिटमेंट और कितना टाइम हाँ. लगेगा कि So- एड भी ले ले और मतलब सेलिंग पॉइंट भी ले ले, ब्रांड Yeah. बनाना है तो वो So see, there is no, first of all, there is no fixed set number of days कि बाबा आप अगर 1 साल ये करोगे तो आपका गारंटीड ब्रांड बन जाएगा, या ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप 1 साल के लिए करो. आप अगर वैसा कुछ फॉर्मूला या कुछ होता तो every brand today would be a unicorn, right? So it is not like that, but you do have a chance of making it rather than not committing 2-3 months. If you are just there and you give up, you are nowhere, right? You are already you have given up. Now iske liye I have the solution, not the solution, but what they should do is, most founders don't have a roadmap, right? They don't have a 1 year, 2 year, 3 year roadmap laid out. That's what we help founders with. उसको गो टू मार्केट बोलते हैं, या गो टू मार्केट या रोड मैप, जो भी आप नाम तो कुछ भी ले लो. 1 year सेल्स रोड मैप हो गया, 2 years ब्रांड बिल्डिंग रोड मैप हो गया. बट व्हाट इट इज एसेंशियली इज योर मंथ वाइज, क्वार्टर्स वाइज, या कि व्हाट metrics, what revenue points are you going to hit, how you are going to take your brand from zero to, let's say, in brand terms 100k followers, in business 50 lakhs, 1 crore, 5 crore revenue. तो वो रोड मैप आपको बिल्ड करना है, राइट? एंड दैट इज द ग्रोथ दैट यू नीड टू हैव. एंड कीप ऑडिटिंग कि आप अगर पहले क्वार्टर में आपने 50,000 का लॉस अकाउंट किया था, तो वो कम ज्यादा लॉस हुआ है क्या, आप ऑन ट्रैक हो,
सेकेंड क्वार्टर या 6 मंथ्स में यू हैड फोरकास्टेड कि मेरा 50,000 पर मंथ होएगा फॉर एग्जाम्पल, तो वो हो रहा है क्या नहीं, वेर आर वी गोइंग रॉन्ग? सो इफ यू आर शूटिंग ब्लैंक, आपको अगर पता ही नहीं कहाँ पे आप शूट कर रहे हो, तो यू आर जस्ट यू नॉट गोना गो एनीवेयर. So having that roadmap in place, right? At 6 months revenue point, and what are the actions you're going to take? 10 लाख के लिए कितना आप मार्केटिंग में डालने वाले हो, एड्स में कितना डालने वाले हो, उससे आपका सेल कितने होने वाला है, कॉस्ट पर लीड कितना होगा, कॉस्ट पर एक्विजिशन कितना होगा, तो ये आपके सामने चाहिए. And then you keep tweaking. Beautiful quote by Steve Jobs. He used to say ki you always optimize a business, you don't build a business. So beautiful, because you can optimize something which is already there, right? So you have to optimize your way to a big brand and not build it. Build आज के there's a trend कि people say कि I want to build a brand. वो build ऐसा हो गया है ना कि कुछ तो बहुत बड़ा करना है. You keep that aside and you say I'm going to optimize my brand. तो optimize is कि मैं जो भी है मेरा छोटा brand, मैं उसको थोड़ा धीरे-धीरे optimize करके I'm going to take it to the highest. 1% at a time. Yeah. I hope that makes sense. Yeah, sure, definitely. I mean, this is your kind of suggestion, idea for a brand or any person who want to build their brand, not just in fashion design. Absolutely. Yeah. This applies to most of the things that I'm saying. Those apply to a lot of categories, almost all categories of D2C. Right? Online है तो most of the principles remain. See, at the back of everything, marketing and business principles एक ही रहते हैं. आपको कैटेगरी वाइज थोड़ा सा क्रिएटिव्स में, लैंडिंग पेज में यहाँ वहाँ आपको चेंज करना पड़ता है, बट बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो सेम ही रहेंगे. ओके, तो हमने सारी बातें तो कर ही ली लगभग, लेकिन कोई ऐसा मिसकंसेप्शन भी होता है क्या फैशन डिजाइनर या किसी भी ब्रांड का? क्योंकि हमने ऑलरेडी इतनी सारी चीजें ना ऑनलाइन देख ली है, हम दूसरे ब्रांड्स को सक्सेसफुल होता हुआ देखते हैं, हमारे खुद के भी फेवरेट होते हैं, फिर हम लोग जाते हैं उनको रीड करते हैं तो हमें समझ में आता है चलो उन्होंने ऐसे किया है. सो वी हैव काइंड ऑफ अ रॉ स्ट्रेटजी कह लूँ या फिर रॉ मिसकंसेप्शन कह लूँ या इल्यूजन कह लूँ, कुछ भी कह सकते हैं उसे, कि हम तो सोचते हैं कि ऐसे चीजें करेंगे तो हो जाएगा, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर ओन ब्रांड. तो वो मिसकंसेप्शन एक अर्ली स्टेज पर्सन के लिए जिसको बस इतना ही आइडिया है जितना उसने देखा इंस्टाग्राम पे कि ऐसे होता है, कुछ के लिए कर जाता है, तो वो मिसकंसेप्शन क्या है? So many of them, right? So many of them, but I'll cover थोड़े जो I see a lot. तो पहला तो है कि अगर मेरे 100K फॉलोअर्स है तो मेरा ब्रांड बन गया, मेरे 100-200K फॉलोअर्स है तो मेरा रेवेन्यू भी आ जाएगा. As I said in the beginning, followers on brand on Instagram is a brand metric, right? ये कोई भी आपको मार्केटिंग का पर्सन या जो भी बोल देगा, लेकिन that is nothing to do with the amount of business you're doing. ये जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं या इवन क्रिएटर्स यू सी टुडे, क्रिएटर्स भी जो बड़े-बड़े हैं, उनके अंकुर वारिकी ले लो, he has like millions of followers. तो भी you see his ads on YouTube and Instagram. तो उनके तो if he has so many followers, तो वो लॉजिक से उनको कुछ नहीं करना चाहिए था, right? So that has nothing to do with the kind of business you attract, right? And there could be misleading metrics also that people have misconceptions about. So followership has nothing to do. It will create a brand for you, sure, but that doesn't mean कि आप revenue sales के लिए उसको consider कर लो. A sales roadmap is different than from a brand this thing. So yeah, that is one. I think also people at the nascent stages, जो founders at a very early stage आते हैं, या मैंने जिनसे इनके बात की है, they have experiences which are not theirs. Preconceived notions है कि ads में पैसे जलते हैं, या मेरे friends ने ads में पैसा डाला और उनको कुछ नहीं मिला, right? What do you know about
how they worked? Did you work with the agency closely, right? क्या उनको आपने मेट्रिक्स दिए थे हिट करने के लिए, राइट? तो सिर्फ पैसा दे देना इज नॉट इज हाउ यू गेट रिजल्ट्स, राइट? तो एंड देन एक बार पैसा आपका यू बर्न योर हैंड्स इनटू मार्केटिंग, then second time it becomes very difficult for you to invest again, right? True. No matter what the agency or consultant is, it becomes harder for you to invest. So I tell them that you come in with a very open mind, with your biases from your previous experience, कि आप clean slate लेके आओ, and then we'll work together. Great. Yeah. तो अब ये लास्ट क्वेश्चन इस पे रखते हैं कि इफ यू कैन टेल, जैसे अभी तक आपने बता दिया कि क्या क्या होता है, नाउ जस्ट टेल मी और सबको कि व्हाट एग्जैक्टली यू डू एंड हाउ यू हेल्प इन ऑन द बेसिस ऑफ अभी तक हमने जितनी बात की ना, फैशन डिजाइनिंग, ब्रांड, सोशल मीडिया, इन सब चीजों को मिला के नाउ इफ यू कैन एक्सप्लेन कि आप एक्चुअली में किस तरीके से हेल्प कर सकते हो ब्रांड्स को एंड व्हाट यू डू एंड व्हाट योर एजेंसी डू, थोड़ा सा. Sure. So yeah, I mean, we have a program called Founder Clarity Program, which again has different phases. Designing the go-to market उसमें होता है. In the first phase, we kind of derive brand elements. जो भी आपके विजुअल्स, लोगो के अलावा जो ब्रांड एलिमेंट्स है उसको डिराइव करते हैं. सेकेंड स्टेज में हम वेबसाइट वगैरह जो भी है, अगर एसेट्स बनाने हैं, स्टोरी टेलिंग वीडियो बनाना है, तो वो हम करते हैं. And third, I think, which is the most important, which is that roadmap we spoke about, a go-to-market. कि go-to-market launch तो कैंपेन लेवल पे कैंपेन भी कर सकते हैं, या फिर आपको एक बिजनेस ही लॉन्च करना है पूरा, तो उसके लिए भी go-to-market कर सकते हैं, राइट? तो वो प्लान करना कि आपको क्लैरिटी मिले, एंड देन लॉन्चिंग विथ वॉट एवर एड्स और आउटरीच ऑन इंस्टाग्राम, organic outreach, right? So that's how we help brands with this program. And it depends, different brands are at different stages. We have had brands who are like 5 years into the business, 3 years into the business, someone who wants to launch in 2 months, launch ke liye bhi hai, someone who's launched 1 year back, 3 months back. So different stages, different scenarios, but principles would remain the same. Principles एक ही रहते हैं, and that's how we kind of do it. ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मतलब मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको आपके का काम बहुत अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है, या फिर कोई भी इंसान है जो ऑलरेडी किसी काम में है. लेट्स से द मेन क्वेश्चन इज कि अगर किसी को वो बनना है जो आप काम कर रहे हो, तो उसके लिए उसे किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए कि वो आपका ये काम कर सके ऑफ अ बिजनेस और ब्रांड कंसल्टेंट. इफ अगर वो किसी और भी स्ट्रीम में भी हो तभी भी बता दीजिएगा, बिकॉज यू आर आल्सो फ्रॉम. तो यार, एक तो पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं इतना कोई बड़ा कंसल्टेंट या बहुत बड़ा ये नहीं. आई मीन But अगर still, किसी yeah, को जानना है तो definitely. क्या कर सकते हैं. डेफिनेटली जो अगर मेरे से कॉलेज में है, या he wants someone who wants to kind of pursue this, firstly you need to understand कि the difference between a freelancer and an agency. मेरे में एक स्किल है, मार्केटिंग या एड्स या जो भी है, अलग सबकी एक एक स्किल होती है. कोई राइटर होता है, कोई एड चलाना जानता है, कोई वीडियो प्रोडक्शन करना जानता है. एक हो गया आपकी स्किल. दूसरी चीज है वो स्किल को बेचना, योर सेलिंग एबिलिटी टू सेल दैट स्किल. एंड थर्ड इज द creating a business model around that skill, right? So most of the people have only the skill. And for the second and third points, you need to, for second के लिए तो you need to invest. You need to kind of work with people to understand what is selling, right? And third is business model जो मैं बात कर रहा हूँ, that is the bridge between second and third. जो एक फ्रीलांसर है उसको बेचना आता है, वो बहुत प्रोडक्ट्स करता है, प्रोजेक्ट्स करता है, लेकिन उसके पास बिजनेस बनाने का कैपेबिलिटी या स्किल नहीं है. वो एक प्रोजेक्ट आते जाएगा, वो करते जाएगा, एंड यू कैन नॉट बिल्ड वेल्थ बीइंग अ फ्रीलांसर बिकॉज योर टाइम
is linked to amount of money you make. आप एक प्रोजेक्ट करोगे आपको उतना पैसा मिलेगा. फ्रीलांसर, हाँ, एक प्रोजेक्ट लेके काम कर रहा है, 2 प्रोजेक्ट लेके काम कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 कर सकता है एट ए टाइम. लेकिन when you see business, you're doing it at scale. Your time is not taken in that skill. You're hiring people or creating a business model around that skill and ability of selling. So yeah, I would say someone who's starting first, just learn a skill to the team. बहुत अच्छे से एक स्किल ये कर लो, उसके बाद कैसे बेचना है वो स्किल, वो सीखो. और उसके बाद व्हेन यू डू 10-15 प्रोजेक्ट्स, आई थिंक बहुत हो गए. देन 10-15 का पोर्टफोलियो आपके पास आ गया, अच्छे जो रिजल्ट्स आपने लाके दिए हैं कस्टमर्स को, then it is very easy to scale. Not easy, I would say, not that easy, but accessible to scale with a business model. Then comes in to put money into it, through funding or through loans or whatever, right? For an agency business, I would say loan, because it's a proven business model, and you can kind of get loans from it. But again, I'm not endorsing, or I'm not saying, don't take me for my word, but yeah, I would go for that route. So yeah, I think basics, I'll just sum it up कि एक है skill, दूसरा है selling ability, and तीसरा है business model. So 3 stages. Yeah. ग्रेट यार, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से बताया आपने सब कुछ. Yeah, thank you. या तो आई थिंक हमने सारी चीजें तो बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है. तो इफ यू हैव एनीथिंग एल्स टू से, टू शेयर योर विजडम, टू शेयर योर नॉलेज, और टू शेयर एनीथिंग, तो आप वो बोल सकते हो टू द व्यूअर्स अबाउट योरसेल्फ और अबाउट योर कंपनी और एजेंसी. So yeah, you can follow me on Instagram. There's my handle is build with purpose. So build with dot purpose. So it's not that grown as of yet. I'm still in the process of putting content out. So yeah, you can follow me there. You can follow me on LinkedIn as well. I think you can put the links to my socials there. And yeah, if you want any help, anything, you can just hit me up there, and I'll get back to you. Great. So what is your purpose of this? So my purpose when I started, so thoda backstory is इसमें कि when I came back, I joined first when I came back from Singapore. I joined my family business. तो family business में ऐसा हुआ ना कि वो फार्मास्यूटिकल्स में, और मेरा पूरा डिजिटल या जो भी ब्रांडिंग में मेरा काम है, तो वो मुझे ये नहीं मिल रहा था, वर्क सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था. एंड और वो फार्मा को हाँ, वो समझना भी नहीं था मुझे कुछ, जो दवाई रहता है, और क्या लोग पूछते हैं, एमआर आके, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स आके दवाई में तो बहुत पैसे भी होते हैं. सॉरी, इस फील्ड में तो पैसे भी होते हैं बहुत. अरे पैसे मतलब या अनएंडिंग इंडस्ट्री है भाई, रुकती नहीं है कभी. कुछ भी हो जाए, फार्मा नहीं रुकेगा, दवाई रुक जाएगी. तो हाँ, वो हिसाब से अच्छा है. लेकिन अगेन वो मुझे वहाँ पे वर्क सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, और पहली बात तो समझ रहा नहीं था. तो वहाँ से फिर वो मेंटरशिप नहीं मिली थी मुझे वहाँ पे. जो थोड़े फैमिली में थोड़े प्रॉब्लम्स थे, ट्रेजेडी हो गई थी फैमिली में, तो मुझे वो मेंटरशिप का थोड़ा जो पहला साल था मुझे नहीं मिला था. तो मैं खुद ब खुद लोगों से बात करके या ये करके मैं ये करता अपना निकाल रहा था. तो that this was the purpose actually for that, कि mentoring और helping people get from that 0 to 1, कि जिनको वो support या जो चीजें वो जानते नहीं है, and helping them with those things is actually the purpose of my what I do, why I do it, to help them kind of, क्योंकि मुझे वो ये नहीं मिला था support, so I'm going out there and helping those founders out. Wow, yeah, sweet. Great purpose. And I really hope कि आपका जो भी thought है, या फिर आपके जो भी जो भी plan है, वो work करे. And yeah, all the best for your future. And thank you so much, Ken, for connecting me. Thanks a lot. मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के, और आपके सारे व्यूज सुन के, बहुत ही जेन्युइन है. एंड आई रियली होप आप जो ब्रांड बिल्ड करें वो भी बहुत जेन्युइन हो, and they cater the customer in the same way that you are thinking कि मेरे जो brands बने वो अच्छे बने.
Right. Okay, we need that. Absolutely. Even I had a very good time, Rashmi, and thanks for doing this. I had a fun time interacting with you. And yeah, let's connect again. And yeah, thank you so much for. मैं जरूर कनेक्ट होगी दोबारा किसी और टॉपिक पे, इसी फील्ड में किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए, एंड देन वी विल लुक की हाउ दीज होमग्रोन ब्रांड्स आर वर्किंग, बिकॉज दे रियली नीड अ कंसल्टेंट. जिस तरीके से मैंने देखा बूम होते हुए, एंड देन आई एम सीइंग कि बहुत सारे पेजेस तो गायब हो गए, पीपल आर नॉट वेरी एक्टिव, तो दे नीड सम काइंड ऑफ बिजनेस हेल्प फ्रॉम दोज पीपल जो उन्हें एक्चुअल में उस डायरेक्शन लेके जाएं. एंड उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती, मैंने कुछ लोगों से बात की थी तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती भी है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैनेज करने में. Absolutely. आई होप अगर बहुत सारे लोग इस फील्ड में आते हैं तो इट इज गुड फॉर इंडिया to make this new Bharat. Absolutely. It's booming, man. It's booming. Online business is booming in India. So yeah, it's we have a very great future in the business. Definitely, we have, and जितने भी ज्यादा homegrown brands होंगे उतना ज्यादा हम self sufficient होंगे, तो और as a person, as a family, as a society हम grow करेंगे. Thank you so much. Absolutely. Thank you. Okay, thank you so much, Rashmi. and I really hope आपको अच्छा लगा. And Yes, definitely. I had fun. मुझे I hope you did too. Yeah. हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. काफी दिनों बाद मैंने इस टॉपिक पे बात की है. चलो Right. ठीक. Okay, thank you so much. Thank you. Bye. Until you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.